Good morning, class 7. In the first class, I have discussed you about the how plant prepares their food by the process of photosynthesis and the importance of carbon dioxide, how they obtain carbon dioxide for photosynthesis, what is the role of stomata in it. Today we are going to discuss how the plant obtain water for photosynthesis. Before starting this topic, I want to explain you a diagram, that is figure number 4. On the first lecture, I have tell you how the stomata pose, what are stomata pose, what are guard cell. So these are the stomata, and these outer layer are known as guard cell. Understood? These outer layer are known as guard cell. So when the guard cells get open, stomata pores are open, and they are able to exchange the gases, like they inhale they inhale carbon dioxide and exhale oxygen. So this is the diagram of open stomata, and this is the diagram of closed stomata with the guard cell. Now we are going to discuss the plant obtain water for photosynthesis. As we all know, plant take water needed for the photosynthesis from the soil. They take water from the soil, and soil always contain water in it. Soil have always amount of water in it. Water present in the soil is absorbed by the plant and then transported to the leaf. Water present in the soil, they absorb by the root and transported to the other part of the plant through the vessels which run like interconnecting pipe, जो कि रूट से सारे प्लांट्स के पार्ट में एक पाइप की तरह दौड़ता है, और उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम. लिसन, it is xylem, xylem. Xylem is a tube-like structure which run through root to the all part of the plant, and it supply water from soil to the leaves. Understood? The plant also need mineral to make food other than carbohydrate, और plants को minerals चाहिए to make the food other than the carbohydrate. For example, nitrogen minerals to make protein. As we all know, most of the part of the atmosphere is covered with nitrogen gas, and nitrogen is and some bacteria are present into the soil which fix nitrogen to the soil from atmosphere, and then they are absorbed by the root to to make the minerals like protein. The minerals are present in the soil. The minerals dissolve in water present in the soil and get transported with it. और मिनरल जितने भी हैं वो वाटर के साथ सॉइल में डिजॉल्व हो जाते हैं, और सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू, फिर जाइलम के थ्रू धीरे धीरे प्लांट में हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं. तो कंक्लूजन इज वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू इट्स लीव. क्या होता है? वाटर मिनरल जो भी प्रेजेंट होता है सॉइल में, वो क्या होता है? रूट के थ्रू पूरे लीव्स, धीरे धीरे पूरे लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है. एंड इंटरकनेक्टेड पाइप लाइक जाइलम वेसल्स प्रेजेंट थ्रू द रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द प्लांट. और जाइलम वेसल जो होती है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? रूट से लेकर स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स में और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. नाउ the role of chlorophyll in the photosynthesis. Chlorophyll play an important role. We have discussed this on the first day also, that all the processes are food making done in the part of which part of plant? Leaves. And where the chlorophyll is present? Inside the leaves. So chlorophyll is a green substance present in the leaf of plant. Chlorophyll is a green substance present in the leaf of plant. In fact, it is the presence of chlorophyll which makes the leaves to look green. आप सबको इससे पहले भी मैंने बताया है फ्रॉम क्लास 5th ऑल्सो, कि लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है ड्यू टू इट्स ग्रीन पिगमेंट, इट्स नोन एज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है. द सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल इज यूज टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करती है. क्लोरोफिल जो है सनलाइट से एनर्जी लेती है, फिर सनलाइट से एनर्जी और वाटर को कंबाइन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को
एंड वाटर एंड द ग्रीन लीव्स में टू प्रोड्यूस फूड लाइक ग्लूकोज, और वो सब मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रूट से जाइलम के थ्रू वाटर आ रहा है, तो ये सब मिलके फूड बनाते हैं, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। वी कैन नाउ राइट द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन अ simple way, that is chlorophyll absorb light energy from sun and supply this energy to the leaf to enable them to carry out the process of photosynthesis for food making। तो लीव्स का काम क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड सप्लाई दिस एनर्जी टू द लीव्स में एनर्जी देता है टू मेक देम एबल फॉर द photosynthesis process। Since the combination of carbon dioxide and water to make food like glucose occur in the presence of sunlight, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सेमली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करता है, फूड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, मीन्स डायरेक्टली गोज टू सनलाइट, एंड सिंथेसाइज टू कंबाइन। सिंथेसाइज मतलब उन सबको मिलाना। प्लीज नोट दैट क्लोरोफिल इज present in the form of hundred of tiny structure called chloroplast। और क्लोरोफिल क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नाउ हैव अ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है आपका, एयर स्पेस स्टोमेटा, मैंने बता दिया था, ये गार्ड सेल है, ये ओपन होता है तो गैस एक्सचेंज होता है, ये सारे क्या है, मान लीजिए आपका एक स्टोमेटा है और ये बाहर जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये क्या है, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जब खुलते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। देन अब ये देखिए छोटे छोटे क्या है, क्लोरोफिल है ना, तो ये जितने सारे छोटे छोटे क्लोरोफिल हैं इनको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और ये हंड्रेड्स में होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ सनलाइट इन द फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज इट इज, रोल ऑफ सनलाइट इन द फोटोसिंथेसिस। द सनलाइट सप्लाइज एनर्जी फॉर द फूड making process, that is called photosynthesis। The sun energy is captured by leaves with the help of chlorophyll and converted into chemical energy। सनलाइट क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ट्रैप करता है और उसको किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में। दस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, सनलाइट एनर्जी किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। दिस केमिकल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड, और ये एनर्जी किस में स्टोर होती है, एज अ प्लांट फूड। सो व्हेन द प्लांट इज food is utilized, then actually the use of solar energy stored in it in the form of chemical energy। तो जो भी हम प्लांट फूड यूटिलाइज करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, हम एनिमल है, वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सिंस ऑल द फूड ऑन द अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, देयरफॉर sun is the ultimate source of, means primary source of energy for all living things। Okay, as we all know, in previous classes you have discussed कि plant is the primary source of food। तो जब प्राइमरी सोर्स है और सारा काम प्लांट का किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सो सन इज द प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट ऑफ लीव्स हैव वेरियस कलर। जितने भी कलर के लीव्स होते हैं क्या वो सिंथेसाइज करते हैं फूड, ना सी। मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव ग्रीन कलर लीव्स, सम ऑफ द प्लांट हाउएवर हैव डिफरेंट कलर लाइक रेड, वॉयलेट और ब्राउन एक्सेट्रा। द लीव्स हैविंग कलर अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव देयर क्लोरोफिल इन देम। उनमें भी क्लोरोफिल होता है एक्चुअली। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, वॉयलेट और ब्राउन और अदर पिगमेंट इन सच लीव मास्क ऑफ ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। एक्चुअली जो उनका ये सब कलर होता है वो क्या होता है, उनमें वो कलर प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोफिल की कोटिंग हो जाता है, एक तरह के मास्क पहन लेते हैं, मखौटा का ये, जैसे आप इजीली समझ पाओ कि आपका जो चेहरा होता है, लेकिन अगर हमने कोई मास्क पहन लिया तो हमारा चेहरा ऊपर से उस कलर का दिखेगा, सेम वैसे क्लोरोफिल में होता है। सो द फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन द लीव हैविंग द ग्रीन कलर अदर देन ग्रीन कलर। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसमें भी होता है जिन लीव्स के कलर अदर देन द ग्रीन होते हैं। अंडरस्टूड।
एक्चुअली क्या होता है कि जस्ट दे हैव अ मास्क ऑन द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल, mask on the it, that's also can synthesize their own food. Now our next topic is photosynthesis by plant part other than leaf. So now we are going to see, अभी तक हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीव्स के थ्रू। अब देखेंगे कि लीव्स को छोड़ के और किसके थ्रू हो सकता है। Now we read how the other than leaf part, which part synthesize the food for the plant. Normally photosynthesis take place only in the leaf of the plant. In some plant, however, photosynthesis also take place in other part of the plant such as green stem. कुछ अदर पार्ट में भी होता है, जैसे ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेज हो जिस प्लांट की, उनमें भी क्या होता है एक्चुअली ग्रीन कलर से क्यों होता है उनका स्टेम और ये ब्रांचेस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज इट कंटेन्स द क्लोरोफिल. फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट प्लांट लाइक एज कैक्टस हैव टाइनी स्पाइंस लाइक लीव. स्पाइंस जो उनके होती हैं, जो कांटे होते हैं, वो क्या होते हैं एक्चुअली वो लीव पार्ट होते हैं. और ये जो आपको लीव समझ में आता है वो क्या होता है स्टेम और ब्रांच पार्ट. अंडरस्टूड. ये स्पाइंस क्या है डेवलप्ड लीव्स. तो क्या होता है डेजर्ट एरिया में पानी कम होता है तो ट्रांसपिरेशन कम हो, पानी कम जाए पौधों से, इसलिए वो किस में हो जाते हैं चेंज स्पाइंस में. स्पाइंस मीन्स कांटे, तो स्पाइंस में चेंज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर कम होगा. दिस टाइनी स्पाइंस लाइक लीव ऑफ कैक्टस प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस. तो ये स्पाइंस होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. That's why these tiny spines like leaf of cactus plant cannot do the photosynthesis. The stem and branch of the cactus plant are green. इसीलिए stem और branch क्या होता है cactus plant का green होता है क्योंकि वो chlorophyll contain करता है. So the green stem and green branch of the cactus plant carry out the process of photosynthesis. और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है कैक्टस प्लांट में, ब्रांच और स्टेम्स में. अंडरस्टूड. To make the food for the plant, please note that only those stem and branch which are green in color do photosynthesis. सिर्फ वही स्टेम और ब्रांच जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे जो इनके कलर्स क्या होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं. Now the stem and branches of all part and tree are not green, so the stem and branch of all plant and tree cannot do the photosynthesis. हमने देखा है कि जितने भी प्लांट हो उनके स्टेम और ब्रांचेस ग्रीन कलर के नहीं होते. So that's why all plant cannot do the photosynthesis by the help of stem and branches. There's only exception like cactus. So this is the explanation till to page number 5, class 7th. पेज नंबर 6. कम टू पेज नंबर 6, दैट इज फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी. अब तक हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद कैक्टस पढ़ा, अब एल्गी. मेनी टाइम्स वी हैव सीन पैचेस ऑफ स्मिली ग्रीन लेयर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द पाउंड लेक और इवन इन द स्ट्रेगनेंट पार्ट ऑफ द रिवर. कभी कभी आपने रिवर, पाउंड और लेक के किनारे देखे होंगे कि ग्रीन पार्ट क्या होता है. Many times we have seen patchy layer or floating of the surface on the green part. देखते हो कि बिल्कुल ग्रीन सा पैची टाइप का क्या होता है, उसे क्या कहते हैं एल्गी कहते हैं. इट ऑल्सो डेवलप इन द स्विमिंग पूल. जहाँ धूप नहीं लगती, प्रॉपर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वहाँ ये ग्रो करते हैं. इट ऑल्सो डेवलप इन द स्विमिंग पूल विच हैव नॉट बीन क्लीन फॉर लॉन्ग टाइम. और कहाँ होता है जहाँ हमेशा सफाई नहीं होती. दिस ग्रीन लेयर इज फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ टाइनी ग्रीन. सो दिस ग्रीन लेयर फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ टाइनी ग्रीन प्लांट इज ग्रीन. एक्चुअली वो प्लांट ही होते हैं. सो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक कॉल्ड एल्गी. उससे हम क्या कहते हैं एल्गी. एल्गी इज प्रोनाउंस्ड एज एल्गी. द सिंगुलर नंबर ऑफ एल्गी इज एल्गा. और सिंगल मतलब सिंगल नंबर है, सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल यू नो कि एक से ज़्यादा. तो सिंगल में हम एल्गा प्रोड्यूस करते हैं और प्लूरल नंबर में एल्गी. इट इज़ कॉल्ड शैवाल इन हिंदी, और हिंदी में इसको शैवाल भी कहते हैं. एल्गी इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट. एक तरह का प्लांट है लाइक ऑर्गेनिज्म.
सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. अगर हम एज अ साइंस थ्रू जाए तो इट इज़ अ ऑर्गेनिज्म नॉट अ प्लांट बट इट हैज़ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर. दैट्स वाई एल्गी कंटेन क्लोरोफिल. उनमें भी क्लोरोफिल होते हैं. एंड प्रोड्यूस फूड बाय सिंथेसाइज देयर ओन फूड जस्ट लाइक प्लांट. उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं. इसलिए जैसे प्लांट अपना खाना बना सकते हैं वो एल्गीज भी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. एल्गी हाउएवर डिफर फ्रॉम द प्लांट. लेकिन प्लांट से डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीव. क्यों डिफरेंट होते हैं? जैसे प्लांट के प्रॉपर स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, बट एल्गी में ये नहीं होता. द ग्रीन कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम. जैसे लीव्स की ग्रीन कलर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सेम उसी तरह एल्गी की भी ग्रीन कलर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll in them. So what is algae? As some patchy and green layer floating on the surface of pond, lake or even in the stagnant part of the river. It is developed because lots of humus and not about the proper sunlight in it. Next topic is synthesis of plant food other than simple carbohydrate, means other than glucose. This topic we will continue in the next class. So class 7th revise till to photosynthesis by the algae, page number 6. Revise the explanation, go through it properly. If you have any kind of confusion, just discuss it. Have a nice day. Bye bye.